السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ RNA فیس ٹو فیس کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ RNA کے فیس ٹو فیس میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم سیاستدان، دانشوروں کے ساتھ بات کر کے جموں کشمیر کے موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں، چرچا کریں، آنے والے وقت میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، کس طرح سے آ سکتی ہیں، کیا نہیں ہوا اور اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ جڑے ہیں، میں ان سے بات کرنے سے پہلے زیادہ کچھ نہیں بولوں گی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، آپ سب کے عزیز ہیں، پیپلز کانفرنس کے پریزیڈنٹ سجاد غنی لون صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سجاد صاحب، 1978 میں پیپلز کانفرنس آپ کے والد صاحب نے بنائی، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم کیونکہ زیادہ تر یہی مانا جاتا تھا کہ سنگل پارٹی سسٹم تھا، ایک ہی پارٹی جو تھی وہی اپنا پاور چلاتی تھی، ون پولیٹیکل ون چیئر، اور آپ کے والد نے کہیں نہ کہیں ریبیل کر کے ایک نئی پارٹی بنائی۔ آج 44 ایئرز ہو چکے ہیں، آج کی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا تبدیلیاں آئیں، کیا فرق پڑا، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، لون صاحب واز اے ریبل، رائٹ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ریبل تھے، اور انہوں نے یہ پارٹی 78 میں بنائی تھی، اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، مولانا صاحب تھے، جو ان میں فمیم صاحب تھے، 3 آدمی نے بنائی تھی پہلے۔ تو تب بہت مشکل تھا، تب شیخ صاحب بڑے قداور لیڈر ہوا کرتے تھے نیشنل کانفرنس کے۔ تو ایک جوک ہوتا تھا کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ کون نکلا ہے، یہ ووٹ دینے نہیں آتے ہیں، یہ دیکھنے آتے ہیں یہ کس کا دماغ خراب ہوا جو شیخ صاحب کے خلاف لڑنے نکلا۔ تو دیٹ واز دا ایکسٹینٹ آف ون پارٹی رول، کہ ایک پرسنالٹی تھی، ان کا زبردست دباؤ تھا، بٹ اسٹرگل بہت کی، بہت زیادہ اسٹرگل کی، اور بٹ جیسا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے سے ہر سسٹم میں ہوتا ہے کہ بعد میں جو ایگزسٹنگ تب نیشنل کانفرنس تھی، ان کے خلاف بھی ایک بڑی اسٹرانگ اینٹی انکمبنسی شروع ہوئی۔ لیکن انفارچونیٹلی جب کہ ہندوستان کے باقی اسٹیٹس میں اس اینٹی انکمبنسی کے رزلٹ میں نئے لیڈر ابھر کر آئے، تو یہاں مرکز نے کبھی تب فیئر الیکشن ہونے نہیں دیا، تو یہاں وہی رہے، یہ اسٹرگل کرتے رہے، پہلے 83 میں چوری، پھر 87 میں چوری، تو وہ سسٹم درہم برہم ہوا فائنلی 87 میں، اینڈ آئی تھنک 87 سگنل دا اینڈ آف ہز مین اسٹریم پالیٹکس۔ اب جو ہم یہ اپنا پیپلز کانفرنس کو جب میں آیا چلایا، مین اسٹریم میں گھسے پھر سے، یہ از اے کنٹینیویشن آف دیٹ اسٹرگل، تو ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، ابھی بھی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن جو اسٹیبلشڈ پارٹیز ہیں دے آر اسٹرانگلی انٹرنچڈ مور ان دہلی دین امنگسٹ دا میسز، ان کے ساتھ ابھی بھی لڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ کشمیر ایک کانفلکٹ زون ہے، یہاں وائلنس ہے، یہاں جو ایجنسیز ہوتی ہیں، چاہے اسٹیٹ ایجنسیز ہو، سینٹرل ایجنسیز ہو، آپ مانے یا نہ مانے، ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، تو اس میں بڑے اسٹرانگلی انٹرنچڈ ہیں۔ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو دلی کی ہے، ان کو لگتا ہے کہ بھائی ان کی رٹ چل رہی ہے، لیکن رٹ یہاں ابھی بھی وہی چل رہی ہے جو پچھلے 30 سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو اب کم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ چیلنجز وہی ہیں جو تب تھے۔ سجاد صاحب، ایک کوٹ ہے، چینج از دی اونلی کانسٹنٹ، مگر اسی کے برعکس ایک اور چیز آتی ہے کہ لوگ چینج کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، جیسے ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو تھے ایک ریبیل تھے، اور لوگوں نے اس ریبیل کو سپورٹ نہیں کیا۔ اس وقت اگر سپورٹ ملتا تو آپ کو لگتا ہے کہ آج چیزیں کچھ فرق ہوتا؟ میں نے اپنے فادر سے ایک بار پوچھا، میں میٹرک میں پڑھتا تھا، 82 کی بات ہے، میں نے کہا ڈیڈی آپ تو، ہم پاور میں کب آئے؟ تو انہوں نے بولا سن 2000 میں۔ سو ہی واز ریڈی فار اے فائٹ فار 18 ایئرس ٹو ایوالو۔ انہوں نے بولا اگلے الیکشن میں ہم 3 لیں گے، پھر اگلے اس کے بعد 8 لیں گے، لیکن ونس یو برنگ ان دا ایلیمنٹ آف ریگنگ، یا تو آپ بول دیں کہ نہیں جی ریگنگ ہوئی نہیں ہے، تو تب ہم سارا قصور لوگوں پر چڑھاتے ہیں، لیکن اگر ریگنگ ہے تو پھر لوگوں پر تو سارا قصور نہیں ہے۔ یہ تو باقی میتھس جنریٹ کی جاتی تھی، نہیں جناب انہی کو ووٹ ڈالتے ہیں، اگر انہی کو ووٹ ڈالا ہوتا تو 87 میں پھر بندوق کیوں آتی، تب سے نہیں آئی، تب کیوں آئی؟ سو مجھے لگتا ہے کہ ریبل کا ٹھیک ہے، بڑا ٹف تھا، اسٹرگل تھا، لیکن مے بی لوگ بھی لیٹ تھے ماننے میں یا ایکسیپٹ کرنے میں، بٹ اپارٹ فرام دیٹ جو ایکسٹرنل فیکٹرز تھے، ایجنسیز، سینٹرل گورنمنٹ، کہ نہیں یہاں کسی اور کو لڑنے نہیں دینا ہے، یہ کانفلکٹ زون ہے، کنٹرول رکھنا ہے، جو پاور میں آئے گا ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، دے ور آلسو ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔
रिबेल की बात करें, रेवोल्यूशनरी की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, एक चीज़ बहुत कॉमन है, जेल. जब आप स्टूडेंट थे शायद आपको भी जेल में रखा गया और सुनने में ये भी कि टॉर्चर भी काफ़ी किया गया. तो हैज़ दैट चेंज्ड यू इन अ वे जो आप आज हैं? क्या उसका कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी रहा इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ व्हाट एवर नेगेटिव हैपेंड दैट टाइम? देखो, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब आप जो है ना, एट टाइम्स यू कम अक्रॉस एज वेरी ब्लंट. तो आप, मैंने उनको बोला कि अगर आप दिल्ली के साथ मेरी एक्सपीरियंस देखो, राइट फ्रॉम द डे मैंने वाज अरेस्टेड टिल डेट, तो मेरे पीछे जो मेरी बैक है उसमें जख्म लगे, लेकिन मैं इनको छुपाता हूँ. तो बोले क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरी नई जनरेशन या मेरा बच्चा उस इंटरोगेशन रूम में फिर है, क्योंकि मैंने इंटरोगेशन रूम देखा है. तो मैं दुआ करता हूँ किसी का बच्चा वहाँ ना जाए. जी. तो वो एक्सपीरियंस इस तरीके से चेंज की कि माई होल एंडेवर ऑलवेज विल बी दैट नोबडी शुड गो टू दैट इंटरोगेशन रूम. दे आर अ पावरफुल, बहुत पावरफुल हैं. हम निहत्ते हैं, सिविलियंस हैं. वी शुड नॉट फील डिल्यूडेड. हम में से कोई हरक्यूलिस, कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है. वी कांट टेक दैट टॉर्चर. वी शुड कीप आवर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम देयर एज मच एज पॉसिबल. अपने बच्चों को भी और बाकियों के बच्चों को भी. ये मेरा एक लेसन वहाँ से आया. जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बयानबाजी, स्लोगनरिंग बहुत कॉमन रहता है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं बयान देते हैं, हरकत नहीं करते. मगर इसी बयान पे इलेक्शंस भी होते हैं, जीतते भी हैं, वोट भी मिलता है. और बहुत सारे पॉलिटिशियन जो कहते हैं बयानबाजी गलत है, जैसे आपका भी मानना है कि बयानबाजी पे नहीं, काम करके देना चाहिए. और शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने ये भी कहा कि जो हमारे मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के, इन बयानों की वजह से ही है. सो हम उन पार्टीज को ब्लेम करते हैं. आंट यू टू बी ब्लेम टू? हमने कभी वी हैव नेवर रेज्ड अ स्लोगन व्हिच इज जो कि इन एनी केस अट्रैक्ट करता है लोगों का सेक्रीफाइस. हम पर तो इल्ज़ाम है दैट वी आर वेरी माइल्ड, वी आर वेरी सॉफ्ट. सो इमोशनलिज्म पर तो सवाल ही पैदा नहीं है. हमने कभी कोई नहीं दिया है, नेवर. सो व्हेन यू वर इन पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट इवन देन? तब भी इमोशनलिज्म कहाँ बोला? कौन सा इमोशनलिज्म बोला? वी नेवर आस्क्ड पीपल टू कम ऑन स्ट्रीट्स एंड sacrifice their life. No, never. Okay. So what is the future of Jammu Kashmir, especially when I talk about the youth? How do you see that? क्या होने वाला है? It's very bleak. बहुत bleak situation है. डेमोक्रेसी सस्पेंडेड है. और जो आज के हुक्मरान हैं उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो है कि नॉर्मली जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, उनके एमएलएज के थ्रू, उनके वर्कर्स के थ्रू एक मैकेनिज्म होता है कि साहब लोग खुश नहीं हैं, थोड़ा ज़रा धीरे धीरे करिए, वो पॉलिसी को चेंज करिए. ये एक अंधे बहरों की एडमिनिस्ट्रेशन है, ऊपर टॉप पर बैठी हुई है. कोई आईएएस है, कोई केएएस है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, हुक्मरान बाकी बाहर से आए हुए हैं. तो वो ऊपर खुद ही काम भी करते हैं, खुद ही शाबाशी भी देते हैं. सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. मुझे नहीं मालूम है दिल्ली सरकार को कब तक यहाँ सस्पेंड रखनी है डेमोक्रेसी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई इन द नियर फ्यूचर उनका कोई मूड है डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का. उनको भी लगता है कि उन्होंने बहुत तीर मारे हुए हैं यहाँ. सो वी आर इन अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. सजाद साहब, आपसे बातचीत अभी और जारी रहेगी. एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और उसकी दूसरी तरफ आपसे ये सवाल जवाब जारी रखेंगे. नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए. हम सजाद लोन से और भी सवाल पूछेंगे और भी जानना चाहेंगे कि उनका आखिरकार मुतालबा है क्या. छोटा सा ब्रेक लीजिए, वक्फा लीजिए और वापस आइए हमारे साथ. गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश. सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत.
हर घर का भरोसा है, हर इमारत की मजबूती है, आज और कल की तामीर है, क्योंकि हम ताकत हैं, हम हैं आर्को सीमेंट, मजबूती और भरोसे के लिए सिर्फ इको फ्रेंडली आर्को सीमेंट। आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट, आर्को सीमेंट। शुक्रिया नाजरीन, आपका हमारे साथ जुड़े रहने का। शुक्रिया सजाद साहब, आपने भी हमें वक्त दिया इसके लिए। सजाद साहब, आपकी जब हम जर्नी देखते हैं, यू बीन वेरी वोकल अबाउट पोस्ट आर्टिकल 370 एंड 35A being abolished. August 5, 2019 has been marked as a black day. आपने इसके बारे में बात की है। मगर जब भी हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, चाहे वो NC से हो, PDP से हो, वो बार बार ये वादा करते हैं कि ये वापस आएगा, दिस विल बी रेस्टोर्ड। और जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्हें ऑन फ्लोर कहा कि स्टेटहुड आएगा, बाकी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सो आपको क्या लगता है? देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, जो नथिंग इज कार्व्ड इन स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ नेशंस। तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी सरकार हो, 5 साल के लिए होती है। मुल्कों की तकदीरें तो दहाइयों पर होती है, सेंचुरीज पर होती है। माई बिलीफ इज दैट इट विल वन डे कम बैक। It will depend on a lot of factors and a combination of factors. मुझे भी यकीन है कि इंशाल्लाह कभी न कभी तो वापस आएगा। स्टेटहुड या आर्टिकल्स भी? मैं आर्टिकल 370 की बात करता हूँ या उसकी किसी फॉर्मुलेशन की बात करता हूँ। दी डिवोर्स, ये जो ये फेडरल सिस्टम है, इफ़ यू लुक एट द एंटायर कंट्री इन इंडिया टुडे, ये कोर्स टू फेडरलिज्म बोल रहा है। कोर्स टू मतलब फेडरलिज्म इज लूजिंग आउट एट द कॉस्ट ऑफ अ वेरी सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तो it will be overturned one day. It might come back. It will come back. So is there a strategy that you're working on to bring it back? Look, I'll tell you something. That's where I differ from my other colleagues. There is nothing in our hands that can bring it. Circumstances will bring it back. Me as Sajad or somebody else, we are a very small state in a big union of states. Article 370 को पार्लियामेंट ने लिया। हम बहुत छोटे हैं। पूरे मुल्क अनफॉर्चुनेटली सब कि ये पेट हॉबी थी कि ले लो ले लो ले लो। तो अनफॉर्चुनेट एज इट इज़, बट देयर वाज नो वेरी फ्यू फ्रेंड्स वी हैड इन द एंटायर कंट्री। कांग्रेस है, दे आर नॉट विलिंग टू कम अप टुडे एंड से कि नहीं हम वापस देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी है जो मेन है, नहीं बोलती है कि हम वापस देंगे। समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, नोबडी इज टुडे टॉकिंग अबाउट दैट विल गिव इट बैक। सो वी हैव रीच्ड अ डेड एंड, बट होपफुली देयर विल बी अ रिवर्सल। ये एक ट्रेंड है, हर मुल्क में होता है, लेफ्ट विंग ट्रेंड, राइट विंग ट्रेंड। तो पिछले 10 साल से लगभग देयर इज अ स्ट्रॉन्ग राइट विंग ट्रेंड, इट्स स्टिल गोइंग अप, बट टाइम विल कम, इट विल कम डाउन। सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट लाई टू पीपल। हम यहाँ असेंबली में कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गेट इट बैक थ्रू असेंबली, वी कैन गेट सम पार्ट्स ऑफ इट। जैसे लैंड ओनरशिप है, आर्टिकल 35A के कुछ चीज़ें हैं, वो हम असेंबली में जब हमें स्टेट मिलेगी कुछ चीज़ें वापस ला सकते हैं। लेकिन इन इट्स एंटायरिटी आर्टिकल 370, हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आर्टिकल 370 रिपील किया गया 5 अगस्त 2019 को, और जो आर्टिकल 370 ओरिजिनल था, उसमें भी कोई 80-90% का डाइल्यूशन था। उसमें भी 80-90% का डाइल्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इट वुड मीन अ लॉट। जो इसका ओरिजिनल फॉर्म, दैट रियली वुड मीन अ लॉट, दैट वुड गिव अ लॉट ऑफ लीवेज इन कॉमर्स एंड अदर थिंग्स। But that's what most of the commoners don't know, what exactly it was, what they've lost, and what is the stand. Yes, not many people know. Not many people know. Not many people even know what has been taken away. True. Even the diluted form, they have no idea what has been taken away. Okay. Talking about politics, controversies, they are a part and parcel of this. अभी recently जो land lease controversy चल रही है, stakeholders उसके majorly हमारे कमर्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं। होटलर्स की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, आपकी पार्टी का उसके साथ क्या स्टैंड है? We don't support that land lease जो नए लॉज निकाले हैं। They should not try to, as I told you, they're अंधे बहरों की एक एडमिनिस्ट्रेशन है, they're living in a vacuum, कहीं ऊपर बैठे हो, चलो ये कर लो, चाहे वो कर लो। ये बहुत देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ कश्मीर में हमेशा we should not pretend कि यहाँ सब ठीक था, और neither should we pretend कि अब सब ठीक है। इट कुड बी इधर आपने सब रिजॉल्व किया, सब ठीक हो गया, और इट कुड बी द लाल बिफोर द स्टॉर्म। सो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स यहाँ था, इट वाज बिटवीन फोर्सेस जो चाहते थे कि वो ससीड करे, और वो फोर्सेस जो चाहते थे कि वो जो अपनी डेस्टिनी जो है हिंदुस्तान मानते थे। सो इट इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये
कोर्सिव लॉज ये कर रहे हैं, दे आर वीकनिंग दोज फोर्सेस हु बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, जी, अनफॉर्चुनेटली। बट प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आज ये डिसीजन ले रहे हैं वो 5 साल के बाद पता नहीं कहाँ होंगे, अपने घरों में बैठे होंगे, कोई बिहार में होगा, कोई बेंगलोर में होगा। तो ले देकर आपके और हमारे जो हम यहाँ हैं, हमारी जनरेशन ने ही इसका जो है ना खामियाजा कल भुगतना होगा, कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है आज, इसका जो है खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। एक तरफ सरकार कहती है G20 समिट के बारे में बात होती है, होटलियर्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, प्रिपेयर करें नहीं करें, किस तरह से चलेगा। अल्ताफ बुखारी साहब की अगर बात करते हैं, अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं, ही गोज टू मीट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, मगर सजाद लोन किसी से मिले नहीं। Why only statements? Are you shying away? Are you apprehensive of something? I have met a couple, I think एक बार मिला हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। Why should I not meet? At the end of the day वो करते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनता ही नहीं है तो जाए क्यों? So why should we go? जब कोई हमारा सुनता ही नहीं है तो जाए क्यों? I mean, say, I'll be very honest with you. I mean, say, this is completely, I have never seen such an unresponsive. ये तो जो लोग हमारे साथ काम किया है, जिन्होंने जो IAS ऑफिसर्स थे या KS ऑफिसर्स थे, तो you know, it's difficult for them. I don't call anybody personally because एक दो बार मैंने देखा that probably they don't like it, but they are also living in a different. मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो अफसर महकमा है, ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, माय पर्सनल, ये मेरा अपना ज़ाती एक सोच है, आई कुड बी रॉन्ग। माय बिलीफ इज दैट इंडिया इज एन इकोनॉमिक टाइगर चेंज्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी, चेन करके रखा हुआ है पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन बाकी एरियाज में वहाँ पॉलिटिशियंस हैं जो इस होल्ड को वीकन करती हैं, वहाँ पॉलिटिकल विल भी चलती है। यहाँ हमें इन्होंने उसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया जो पिछले 70 साल से हमें फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं ले पाए, पूरे हिंदुस्तान को सेकंड वर्ल्ड पे नहीं ले पाए। इफ यू लुक एट आवर इंडिकेटर्स, वो बोला हमें क्या देंगे? इफ यू कुड नॉट क्रिएट अ मिरेकल इन अदर स्टेट्स, हाउ कैन यू क्रिएट अ मिरेकल इन JNK? सो दिस मिथ, ये एक नेशनलिज्म का बन गया कि जनाब वहाँ सब गलत था और अब हम जाकर ठीक कर रहे हैं। ये हमारे स्कूल्स, हमारे IAS ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, they are a product of the system that I have, that you have, that they all have studied it. So have you resisted to this change? Is it all a lie? Is that all a lie? Have you resisted to this change? Have you made a point to somebody that this bureaucracy is just a sham? किससे बात करोगे आप? Who do you want to talk to? You have to talk to who is willing to reason out with you. They don't even accept your existence, तो reason कहाँ से करेंगे? जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर एक और बात करते हैं, लॉज में हम लोग हमेशा डील करते हैं, फंस जाते हैं। PS से अभी एक रीसेंट स्टेटमेंट आया उमर अब्दुल्ला साहब का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, साबका चीफ मिनिस्टर भी हैं। आई वांट टू कोट व्हाट यू सेड, आई रीड दैट फॉर यू। नीड अ क्लैरिफिकेशन इन गुड फेथ गिवन दैट जम्मू एंड कश्मीर एज ऑन डेट इज अ यूनियन टेरिटरी। Those who scripted this draconian law want us to believe they will repeal it. Lying through their teeth has been one consistent trait of those who scripted such laws. Why does Umar Abdullah's statement irk you? Why do you get irritated with his statements? My father has been in PSA for 6-7 years, maybe 5-6 years, 7 years, 8 years. Our workers have been in PSA. But basic courtesy है ना कि साहब आपने एक लॉ लाया जिसमें आज तक मुझे लगता है 20 से 40,000 लोगों को लगा है, शायद 40 या 35,000 को, जिसमें आपके दौरे हुकूमत में आप नंबर 1 हैं। सबसे ज़्यादा PSA 96 से 2002 में लगे, राइट? और फिर स्टार्ट भी आप ही ने किया। एंड देन यू एक्चुअली वांट अस टू गिव यू क्रेडिट एंड वांट पीपल टू वोट फॉर यू दैट यू विल रिपील द सेम लॉ विदाउट इवन सेइंग अ सॉरी दैट आवर हेड्स, at least he could have said my head hangs in shame as what we did, brought in this law. कितना आप, how much will you humiliate those people whom you put behind the bars? कैसे, how? और इस सोसाइटी ये कहाँ सोई हुई है? If this is how people take you for granted, they bring in a law, imprison thousands, and then say, okay, we will repeal it now. We want credit for repealing it. So you create a demon. आप एक demon को बनाते हो. Now you want us to credit you for killing that demon. और सबसे बड़ी बात फिर से, I still repeat, UT Assembly does not have the powers to repeal it. Let people know कि इन जालिमों ने जो law बनाया, अब आज की डेट में अगर कल इलेक्शन भी होता है, वो UT वो रिपील नहीं कर सकती. If I am not wrong, even state में भी
मुझे एक वकील साहब ने फ़ोन किया, मैं नहीं जानता था, बोला सजाद साहब इवन इन स्टेट असेंबली इट इज़ डिबेटेबल वेदर दे कैन रिपील इट, बिकॉज वो कुछ बोल रहा था रीऑर्गेनाइजेशन का समथिंग, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर, बट अपेरेंटली इवन इन स्टेट इट्स वेरी डिफिकल्ट. So why should you lie through your teeth? Why? And why don't you admit that we brought in a law? PSA detainees are not numbers. They are human stories. True. किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई. जब टाइम था करियर बनाने का, वो जेलों में बैठे हुए थे. Why do we treat our people like statistics? कि 50 गए, 60 गए, 70 गए. आपको पता है 96 से 2002 में कितने लोग PSA में गए? जब 90 जब इन्हें लगाया तब. आपको पता है 87 में कितने लोग PSA में गए जस्ट बिकॉज कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लिया था. जो आज सलाउद्दीन है उसको नहीं PSA लगाया, यासिर मलिक को नहीं PSA लगाया. किस बात पर? कि भाई why were you a part of electoral process? So when you were a part of the government, coalition government, महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, did you take any initiatives to repeal this law या कुछ इंसिडेंट हुए हो जहाँ पे कोशिश हुई हो? जब मैं सरकार में था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP वाले मजाक उड़ाते थे कि ये पशुपालन का मंत्री है, कि नाम बड़ा लेता है, महकमा बड़ा छोड़ रहा है. अब आज ये बोलते हैं वो पशुपालन वाले को सारी चेंजेस कर दी थी कि महबूबा जी चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, उनका वो होम मिनिस्टर थी, उन्होंने बात क्यों की, वो कोई ये पशुपालन वाले ने क्यों नहीं की. PSA ह्यूमन बींग्स को लगता है, गायों को नहीं लगता. So did she take any initiative? Are you like? I don't think she took any initiative, or but I would not put it on her. She was not in a position. BJP would have never agreed to it. ये तो आप बातें, how could she do it? वो BJP का हामान थी. जो उन्होंने लॉ बनाया था, बनाने वालों ने, उसको 2/3 चाहिए होगा ना रिपील करने के लिए, तो वो कहाँ मानते BJP वाले. सो ना उनके पास ये थी मेजॉरिटी थी. हाँ, मेरे पास 2 MLA थे, शायद मेरे पास मेजॉरिटी थी टू रिपील इट. उनके पास तो टाइम ही टाइम था. अभी सुबह अखबार पढ़ रहे हुए थे तो उसमें मैंने पढ़ा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंग लीडर्स आर जॉइनिंग पीपल्स कॉन्फ्रेंस एंड आई वांट टू कोट दैट अगेन. रिपोर्ट कहती है कि young leaders who've joined PC, first Sameer Bhatt from North Kashmir, who says, I'm quoting the newspaper here, I strongly believe that Sajad Lone is the only leader who can take Jammu and Kashmir out of the current impasse. It also mentions Hilal Rathar, son of National Conference stalwart Abdul Rahim Rathar Sahab, saying, I have to make my own decisions. So are you looking at this like आप पे कुछ pressure बढ़ रहा है, or are you the only choice, or your leadership is questionable, or whatever it's happening? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि समीर साहब हो या अपने हिलाल साहब हो, they both very talented. Sameer साहब, I heard him, he spoke very well, and of Hilal, I think the world about him. वो तो बहुत ही, I see him as a great hope in the future. And I can tell you that when you have such people in the team, तो बड़ी खुशी होती है, एक किक मिलती है. और मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है जो टॉप टैलेंट है वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा है. पॉलिटिक्स के बारे में एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन है लोगों के जहनों में, नौजवानों के जहनों में. लेकिन नौजवानों को ये मानना चाहिए, समझ के चलना चाहिए कि अभी जो ये सरकार है BJP की, तो हमेशा नहीं रहेगी, एक ना एक दिन तो इलेक्शंस होंगे. और जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वही तय करता है कि यहाँ हॉस्पिटल्स कैसे होंगे, यहाँ स्कूल्स कैसे होंगे, सड़कें कैसी होंगी, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी यही पॉलिटिक्स तय करती है. To sit and decide I will not join it is a crime you do against your own society. So young men who are good, who believe they have it in them to script policies which will change the destiny of this place should come and join. To see the change, you have to be the change. That's what Yes, they say. and they have to be, you can't just sit back and criticizing. तो ये एक बड़ा आम चीज़ है. Critiquing is very easy. The toughest part is delivering. Having the courage to go and join and go against the flow at times. Sajad sir, when these people come to you, they have a certain set of expectations कि आप उनका face हैं, you will be their voice, you will be their leader. So does that put you under some pressure, or is it only motivation that you get, inspiration that so many people have faith on me? Will I be able to deliver? Do you really think like on those lines? देखिए, delivery तो success or failure are two sides of a coin, but it gives me an extra drive. It gives that kick कि नहीं, we got a team, we got to lead them. तो अच्छा लगता है. And given that we have struggled so much as a party to come out from the margins, and it gives me extra happiness that we may have finally arrived, although it's still too early to say that. We are trying desperately,
But एक चीज़ है कि what I credit these young men with and our team with, if you look at the discourse, that People's Conference is able to set a discourse. Otherwise, typical of the established parties, give a dog a bad name and kill it. That's what they did against us. They did against anybody who dared from Shah Faisal. उन्होंने एक he dared to come up. So immediately, if he would join an established party, then he was good. But चूंकि उसने बोला मैं खुद अपनी पार्टी चलाऊंगा, तो immediately ये उसने डाला हुआ है, इसने डाला हुआ है. फिर बाकी पार्टीज आई, हम आए. हम तो इनसे पुराने 44 साल से जेलें देखते रहे. They had the audacity कि नहीं, to label us as something. Point ये है कि एक discourse PC, I think they are setting and asking questions. Asking about 87, asking about PSA. These are valid questions. एक इंसान जिसने हजारों लोगों को जेल में डाला हुआ है, कश्मीरियों को, और बिलखुसूस कश्मीरी मुसलमानों को, PSA was totally Kashmiri Muslim specific, right? Will he actually have it in his heart? क्या उसके दिल में कोई मोहब्बत होगी इस कश्मीरी मुसलमान के लिए जो इतना खतरनाक कानून बना सकता है? या ये पार्टियां जिनके हाथों, जिनने ऑर्डर्स दिए हैं कत्ल गारत के, राइट, कैन दे रियली फील द पल्स ऑफ द पीपल? देखिए मेरी एक बात सुनिए, यहाँ ये बीजेपी की सरकार है आज की डेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार है, तो उनके हाथों लोग जेल जाते हैं, मर भी जाते हैं. लेकिन एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जो हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी को है, उनको अपने ज़मीर से पूछना है कि क्या कोई ऐसा गुनाह है जो बीजेपी ने नहीं किया है, या जो बीजेपी ने किया है, क्या ऐसा कोई गुनाह है जो बीजेपी ने किया है उन्होंने नहीं किया है? जेल वो भी डालते थे, ये भी डालते हैं. कत्ल उन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है. ये stringent laws, what has changed? Nothing. That's how I see it. That there is a great dearth of young men who will bring about a change. सजाद साहब, अभी लेटेस्ट अगर हम बयानों की बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज की बात हो रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से न्यूज़ पढ़ती है कि 1987 के इलेक्शन जो थे रिगिड थे, आपका भी बयान था. डू यू थिंक उस पर भी कोई कमीशन बैठना चाहिए पता करने के लिए एग्जैक्टली हुआ क्या, और दिस वुड जस्ट बी अ गेम ऑफ वर्ड्स? देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं बोलता हूँ 87 के बारे में तो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दोस्त हैं उनको गुस्सा आता है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि वन ऑफ द मोस्ट पीस लविंग पीसफुल प्लेसेस ऑन मदर अर्थ वॉज कश्मीर. हमारी बहनें बेटियां रात की 2-2, 3-3 बजे सोना पहन के घूमती थी. उसके बाद बंदूक आई. बंदूक क्यों आई? दिल पर हाथ रखकर बोलें सब कि क्या अगर 87 की चोरी नहीं होती तो क्या बंदूक आता? जो वो वाला मुल्क है वो तो पिछले 40 साल से कोशिश कर रहा था यहाँ बंदूक बेचने की, लेकिन यहाँ कोई लेने वाला नहीं मिल रहा था. 87 gave them the justification. I don't condone what they did. They should have never done it. But फिर 87 के बाद वायलेंस आई. अब ये जो 87 की बंदूक जो आई, पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आई. तब अखबार बड़े होते थे, आफ्ताब, श्रीनगर टाइम्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के, कि भाई हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुकात नहीं है. सच वॉज द एंगर ऑफ पीपल एंड ऑफ कोर्स द फेयर ऑफ द गन ऑल्सो. देन दिस गन गॉट कन्वर्टेड इनटू एन आज़ादी गन. इनिशियली इट केम अगेंस्ट एनसी. इनके वर्करों को, अल्लाह माफ, उन बेचारों को जो है शहीद किया गया, दे वर किल्ड, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू एन आज़ादी गन, राइट. फिर ये लोग चले गए, जो लीडरशिप थी, बाकी फारूक साहब लंदन चले गए, बाकी जम्मू दिल्ली चले गए. 96 में ये फिर आए. एट दैट टाइम इट वॉज नॉट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ शेख अब्दुल्ला साहब, इट वॉज समथिंग एल्स. इट वॉज, अभी मालूम पड़ जाएगा कहाँ से कैसे आगे और इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन करके ये फिर बैठ गए. पॉइंट इज दैट अगर लीगली देखा जाए, अगर 1987 के इलेक्शंस में कोई एफआईआर आप डालते हैं कि साहब 87 में चोरी हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं, अगर कल कोई किलिंग हो जाए वो भी उस एफआईआर का हिस्सा बनेगी. इट्स अ कंटिन्यूम, देयर हैज बीन नो क्लोजर. इफ 87 के बाद कोई क्लोजर नहीं है, वो अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो कहाँ मरे हैं सारी? क्यों कोई ये नहीं बोलता है कि यार इतनी बड़ी चोरी की क्यों, कि अगर कब्रिस्तान भर गए इससे, इतनी चोरी की किसने और क्यों की? अगर इसमें कमीशन नहीं होगा तो सारे दावे जो हैं कि हम कश्मीर, एटलीस्ट लुक एट दोस ग्रेवयार्ड्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकता हुई नहीं चोरी, लोगों ने गलत सुना. आई रियली थिंक
that there should be a commission, a punitive commission, which will fix responsibility and punishment for those who openly rigged elections in such a manner which incited the people of Kashmir to rise up in arms. So have you spoken to the Prime Minister? Have you written to him? हमने with तो regard बोला, to that? हमने तो हमेशा बोला है, वही नहीं देखिए बेसिकली बात क्या है, दिल्ली कभी इस पर एक्ट नहीं करेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वो इसलिए एक्ट नहीं करेंगे, उनको एजेंसीज बता देंगी साहब अगर आप 87 पर उंगली उठाते हैं तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बोलेगी कि यहाँ सारे इलेक्शंस जो हैं गड़बड़ वाले होते थे, राइट? सो दे विल नेवर एक्ट अगेंस्ट देम। प्लस एज आई टोल्ड यू दैट दे फर्मली एंट्रेंच्ड द एस्टैब्लिश्ड पार्टीज, और इसमें इट्स नॉट द पार्टीज अलोन, बाकी एजेंसीज भी तो थी। सो ये इतना बड़ा ये है, nobody will ever do it, but inshallah I think Kashmiri parties who were not a part of that rigging, ये उनका duty bound है that they should talk about it and ensure there is some commission at the state level. सजाद साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट को लेके बहुत चर्चा रहती है कि पोस्ट रिटायरमेंट क्या होगा, रिटायरमेंट कब होगी, बट पॉलिटिशियंस के हवाले से राइट नाउ वी आर ओनली बीइंग प्रॉमिस्ड दैट इलेक्शंस आर कमिंग सून, व्हिच इज नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून, किसी को पता नहीं है। डू यू थिंक इट इज़ रियली एन इंटेंट कि जो पॉलिटिशियंस शायद से लास्ट टाइम ऑन फ्लोर रहेंगे, असेंबली में रहेंगे, दे माइट बी nearing the retirement age? Is that a reason that it is being delayed? Could it be? I don't think so, मुझे तो नहीं लगता है। I don't buy this theory. But overall दिल्ली कामयाब हो गई है एक चीज़ में कि जो incumbent politicians हैं, चाहे मैं हूँ या चाहे मैं हूँ, to create a sense of hatred amongst the people for them, उसमें दिल्ली ठीक ठाक कामयाब हो गई है। अब ये है कि यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं इमर्ज हो रहा है फ्रेश। अगर कोई नौजवान उठे तो आई कैन टेल हिम और हर कि ग्राउंड खाली है, पीपल आर लुकिंग, बिकॉज दिल्ली हैज़, जिस दिल्ली ने 370 लिया, जिस दिल्ली ने हम सबको बंद किया, जिस दिल्ली ने सारे कानून जो ला रहे हैं वो लाए, उसी दिल्ली का लोग ज़्यादा मानते हैं। और इतनी नफ़रत उन्होंने सियासतदानों की या सियासत की हुई है कि इवन आई फील एट टाइम्स कि नहीं, यू नो, पीपल हैव बीन एज इफ दे हैव बीन ब्रेन वॉश। तो द रीज़न दे आर डूइंग डिलेइंग इज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मज़ा आ गया है। दे थिंक दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, दे पैटिंग ईच अदर फॉर द बैक ऑन द बैक्स। उनको लगता है कि हमने ये तो कश्मीरी नंगे भूखे, न पढ़ना आता था, न स्कूल जाते थे, ना यहाँ कॉलेज थे, हमने सब खोल दिए। So they are living in a world of delusion and we are the victims. Sajad साहब, you interact with all people, like छोटे नौजवान politicians, जो upcoming politicians की बात करें या old stalwarts, क्या उनमें कहीं fatigue आपको लगता है कि आधे apprehensive कि पता नहीं हमारे tenure जब तक हम capable हैं election लड़ने के तब तक होगा, आधे apprehensive? मुझे नहीं लगता है इतना, I don't think इतना इस level पर कोई सोच रहा है, I don't think. देखिए Binish, I'll tell you something. It's very difficult for a politician to get up and walk away. Now take me, मैं स्ट्रगल से आया, मैंने पहले पार्लियामेंट लड़ा, जमानत जब्त, फिर हमने सलाम दीन साहब को उठाया, जमानत जब्त। इसमें कुछ लोग हमसे जुड़े दिन रात, वो टारगेट बन गए रूलिंग पार्टीज़ की। आपको नहीं पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ना कितना मुश्किल होता था। क्या PSA लगता था? अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम होते तो आपको लद्दाख भेज देते थे, अगर आप ठेकेदार होते थे तो आपकी बिल बंद कर देते थे। वेरी इनडिग्निटी। अगर आपका बच्चा कहीं इंटरव्यू में होता तो फ़ोन होता कि इसको नहीं सेलेक्ट करना। सो वंस दे हैव स्टूड बाय यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप एंड लीव। वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ चार्म इन पॉलिटिक्स। जिन लोगों के साथ आप के लिए आप लड़ना चाहते हैं वही उनका ज़्यादा सुनते हैं जिन्होंने सब ले लिया। सो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ चार्म। पॉलिटिशियंस भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लोगों को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हम भी लोगों में से ही हैं। इफ़ आई एम बैड, इट रिफ्लेक्ट्स द पीपल। You choose your representative like your own. Exactly. The representative is a reflection of what people there. तो but जो लोग आपके लिए sacrifice दिए, you can't just abandon them and leave. Otherwise, But then the stress might be there ऐसी charming if you don't have a जगह- choice to run the elections again. ऐसी चार्मिंग जगह पॉलिटिक्स अब रही नहीं है। यूटी है, इट्स अ ह्यूमिलेटिंग थिंग। बट देन अगेन, इफ यू लीव, दैट गिव्स दोज पीपल हु टुक अवे एवरीथिंग फ्रॉम अस टू पुट अप
new Served on a platter. yeah, no, to get people, to force people, new people of their choice. That's what they actually want. कि सब उठ के चले जाएं, हम अपने मर्जी के लोग ले आएं, तो वो इंशाल्लाह होने नहीं देंगे, right? That's the reason why. Otherwise, per se, if you ask me personally, कि you know, given a chance, I would just pack my bags and go, because it's very tough, very coercive, बड़ा difficult. But then people have their hopes pinned up on you, and that gives you the kick to perform. Thank you so much, Sajad Saab, for having us and giving us this interview and insight on what your plans are and what you think about the people of Jammu and Kashmir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया RNA की पूरी टीम की तरफ से और हमारे नाज़रीन की तरफ से। नाज़रीन, ये थे सजाद लोन साहब और आप देख रहे थे RNA फेस टू फेस विद बीनिश काज़मी। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारा RNA का फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, ट्विटर हैंडल है, हमारा सिस्टर कंसर्न है द कश्मीर क्लैरियन, उस पर जाके भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।